Hello students. Today we are going to start a poem on killing a tree from class 9 Behind book, and this poem is written by G.V. Patel. And in this poem on killing a tree, poet G.V. Patel persuades the reader not to destroy trees. G.V. पटेल कहता है कि हमें पेड़ों को ख़त्म नहीं करना चाहिए, और वो इक्वेट करता है कि किस तरह से अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो हम जिस तरह से पेड़ों को काट रहे हैं उसी तरह से हम लोगों को भी मार रहे हैं। पेड़ काटना मीन लोगों को मारना। पेड़ अगर काट रहे हैं, अगर हम लोगों को मार रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, मीन क्या है कि जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन, एक आदमी जो लिविंग बीइंग है, उसी तरह से पेड़ भी एक लिविंग बीइंग है। ये भी हमारी तरह क्या, ये भी सनलाइट, वाटर, एयर सब चीज़ें लेता है और उन न्यूट्रिएंट से ये अपने आप को बड़ा करता है। So the poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. ट्री जो है वो लिविंग थिंग्स हैं, हमें उन्हें काटना नहीं चाहिए, हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए। और यहाँ पे जो पोइट है वो ट्रीज़ को ह्यूमन के साथ ह्यूमन के साथ इक्विलेट करता है, ह्यूमन के साथ इक्वेट्स करता है, उसके बराबर रखता है कि वी शुड नॉट किलिंग ट्रीज। इफ़ वी आर किलिंग ट्रीज, इफ़ यू आर यू कटिंग ट्रीज, मीन टू से वी आर किलिंग पीपल। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हम लोगों को मार रहे हैं। So let's start the poem. It takes much time to kill a tree. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height, sprouting leaves. So it takes much time to kill a tree. कि एक पेड़ को मारने में बहुत टाइम लगता है। Not a simple jab of the knife, कि चाकू की एक सिंपल जैब, एक बार चाकू का घोंपना, उससे पेड़ नहीं मरेगा। It has grown slowly, consuming the earth. यह धीरे धीरे से धरती को कंज्यूम करते हुए, उसके का उपयोग करते हुए बड़ा हुआ है। कौन बड़ा हुआ है? पेड़ बड़ा हुआ है। Feeding upon its crust, और ये इसकी क्रस्ट के ऊपर, इसकी सतह के ऊपर खाता है। Absorbing years of sunlight, ये इसने सालों तक सनलाइट ली है। एयर, हवा ली है। वाटर, पानी लिया है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, और इस तरह से ये उस लेप्रस हाइट से, उस कोड़ीपन से, उस दबी हुई जमीन में से बाहर निकला है, और निकल करके इसने अपने पत्तियां खिलाई हैं, फैलाई हैं। So in the poem, the poet is saying that a simple cut does not destroy a tree. A tree grows gradually. It is rooted in the soil. A plant takes nutrition from the soil. It takes the nutrition from the soil and grows to a big tree. The tree is firmly bound with the soil. It takes sunlight, water, and air to grow into a strong trunk and have numerous leaves. So next one is show, hack and chop. Show, hack and chop, but this alone would not do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. Miniature bogs, which is unchecked will, if unchecked will. Expand again to smaller former size. Miniature box, which if unchecked will expand again to former size. So what the point? Show, hack and chop, इसलिए उसको काटना, उसको पीटना, but this alone would not do it. इससे वो पेड़ नहीं मरेगा। Not so much pain will do it, और ना ही उससे ज़्यादा दर्द होगा। The bleeding bark will heal, कि जहाँ से उसको चोट लगी थी, जहाँ से उसको खून बह रहा था, ब्लीडिंग बार्क हो रही थी, जहाँ पे हमने कुल्हाड़ी से उसको काटा था, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और जहाँ से धरती के पास से
विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, और दोबारा से फिर से टहनियाँ निकल आएंगी। मिनिएचर बहुत सारी छोटी छोटी सी टहनियाँ निकल आएंगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सप्लेन अगेन, यदि इसको किसी ने नहीं देखा तो ये दोबारा से फिर से फैल जाएगा। एंड टू फॉर्मर साइज, और पहले वाला साइज ले लेगा, पहले वाला बड़ा पेड़ बन जाएगा। So what is here? Human cut and chop the bark of trees into many pieces, but this is not sufficient to destroy the tree. The point of the tree which gets cut gives out sap, just like a human being bleeds. Gradually, this wood heals, and from there, new branches start growing again. So the tree cannot be killed by just only cutting. If we have to cut the trees, if we are going to cut the trees, if we are going to kill the trees, what we have to do? We are going ahead to read it about. Next one is, no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave. And the strength of the tree exposed, the shores white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. So what is it here? No, the root is to be pulled out. If you want to kill the tree, अगर आप पेड़ को मारना चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ को बाहर निकालना पड़ेगा, पुल आउट, खींचना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ जो धरती उसे पालन पोषण दे रही थी उसमें से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। एंड इट इज टू बी रॉब्ड, उसको बांधना पड़ेगा रस्सी से, टाइट खींचे बांध करके, एंड पुल्ड आउट, उसे खींचना पड़ेगा, स्नैप्ड आउट झटके के साथ उसको निकालना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? उसकी जड़ों को निकालना पड़ेगा, उसकी जड़ों को हम बाहर निकालेंगे। यस, अगर हमने पेड़ को मारना है तो उसकी जड़ों को हमें निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और पुल्ड आउट इंटायरली, पूरी तरह से बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ के, धरती की गुफा से उसको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब हम उसकी जड़ों को बाहर निकालेंगे तो हम उसकी स्ट्रेंथ को, पेड़ की स्ट्रेंथ को, उस ट्री की स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। द सोर्स, और सोर्स को देख सकते हैं वाइट एंड वेट, जो सोर्स उसकी वाइट, वाइट मीन उसकी जड़ें वाइट है, एंड वेट गीली है। द मोस्ट सेंसिटिव, और उसका जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है पेड़ का, जो धरती के अंदर था, जो उसकी जड़ें थी, वो दिखाया जा सकता है, जो छिपा हुआ था सालों से धरती के अंदर छिपा हुआ था। सो द पोएट सेज दैट इन ऑर्डर टू किल द ट्री, तो पेड़ कवि कहता है कि अगर एक पेड़ को मारने के लिए उस पेड़ को हमें अपरूट करना पड़ेगा, उस पेड़ की जड़ें निकालनी पड़ेंगी। One has to separate the tree from the earth which supports it. हमें उस पेड़ की जड़ों को धरती से अलग करना पड़ेगा जो उसको सपोर्ट कर रही थी। The roots of the tree bind the tree with the soil in the pit of the earth. क्योंकि जड़ें ही हैं, जड़ें जो धरती के साथ मिलकर के बंधी रहती हैं धरती के साथ, और वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो उनको हमें निकालना पड़ेगा। एंड जो जड़ें हैं वो सेंसिटिव पार्ट है किसी भी पेड़ का। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done. जो कहा है then the matter, फिर of scorching, और उन जड़ों को निकाल के हमें उसको बाहर डालना पड़ेगा। फिर तपती हुई धूप में चॉकिंग करते हुए, घुटते हुए इन द सन एंड एयर, फिर उसको धूप और हवा उसको सुखा देगी, उसके कलर को चेंज कर देगी, ब्राउन कर देगी, उसकी लकड़ी को हार्ड कर देगी। एंड ट्विस्टिंग, विदरिंग, विदरिंग मुरझा जाएगा वो पेड़ फिर। ओके, सो और उसके बाद वो पेड़ मर जाता है। सो वंस द ट्री हैज बीन अपरूटेड, यदि हम उस पेड़ की जड़ों को बाहर निकाल के फेंक दें, देन ग्रेजुअली इट विदर्स, तो ये पेड़ मुरझाने लगेगा, एंड ड्राई अप, सूख जाएगा, विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड, हवा से और गर्मी से वो पेड़ सूख जाएगा। द ट्रंक विल बिकम ब्राउन, और जो उसका तना है, जो उसकी टहनियाँ हैं, वो भूरी हो जाएंगी, ट्विस्ट मुड़ जाएंगी, एंड विल हार्डन, और मजबूत बन जाएंगी। फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे, और इस तरह से हम पेड़ को मार सकते हैं, इस तरह से पेड़ जो है वो मर जाएगा। सो इट वॉज द पॉइंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।